Welcome to Ek Samvad at Arunimankuran. We're in conversation with hematologist Dr. A.K. Ganju on World Sickle Cell Day, and it's such a pleasure to have you here, sir. Thank you so much for joining us. Thank you, Dr. Pradnya Mathur, for giving this opportunity. It's great to basically be there when there is World Sickle Cell Day. Nagpur being one of the most important places on earth where sickle cell disease has been studied, you know, in a better way, in a very big way. So a lot of knowledge dissipates from Nagpur to elsewhere in the world. Yes, sir. So that's how the Nagpur is on the map of sickle cell disease. Yes. It has a really great importance. So we are so grateful that you took time out and you've joined us, sir. A word about Arunimankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunimankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can create an impact. And that's what inspires us to keep going. So World Sickle Cell Awareness Day is observed annually on June 19th, and it serves as a crucial platform to raise awareness about the disease, a genetic blood disorder affecting millions worldwide, highlight the challenges experienced by patients, their families, and caregivers, promote understanding of the disease, streamline efforts towards improving patient care and finding a cure. The theme for World Sickle Cell Day in 2025 is Global Action, Local Impact, Empowering Communities for Effective Self-Advocacy. India is home to over 50% of the world's patients with sickle cell disease, and Maharashtra carries the second highest burden of the disease, with the affected population concentrated in the districts like Nagpur, Gadchiroli, Yavatmal, Bhandara, Chandrapur, Wardha, Amravati, and Gondia. So we are so grateful to Dr. Ganju for joining us today. He is fellow hematology USA. He's a hematologist with Sher-e Kashmir Institute of Medical Science, Srinagar, fellow hematology, Division of Hematology, Department of Medicine, University of Wisconsin, Hospital and Clinics, Madison, USA. He's a senior consultant with Central India Institute of Medical Sciences, Nagpur, and a consultant with NKP Salve Institute of Medical Sciences, Nagpur. Indeed, it's a privilege for us to have you here, sir. Thank you again. Um, let me start with a very basic question. सिकल सेल डिजीज क्या चीज है और आप उसको एक लेमैन को किस तरीके से समझाएंगे? सिकल सेल डिजीज जो है ये एक ब्लड का डिसऑर्डर है जिसमें आरबीसी डिफेक्टिव होते हैं। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्लड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और ब्लड के अंदर जो आरबीसी होता है ये वन ऑफ द सेल्स है जिसका फंक्शन होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। आरबीसी एक वाहक है, एक ट्रक की तरह, जिसके अंदर एक हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन हैज़ द कैपेसिटी टू बाइंड ऑक्सीजन। इस हीमोग्लोबिन में वो ताकत है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके, और ये आरबीसी जो कि नसों में बहते हैं, तो बहती हुई नस में वो कहीं पर भी शरीर में किसी भी पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। तो आरबीसी बोन मैरो से निकलकर सारे शरीर में सब नसों के अंदर बहता है और इसकी जो लाइफ होती है वो करीबन 120 दिन होती है। तो 120 दिन ये घूमता रहता है और इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसी का कैसा शेप होता है? ये जैसे बटन होता है, या अगर बहुत आसान तरीके से कहूँ तो जैसे गाड़ी का जो चक्का होता है, टायर जो होता है, वो वैसा ही आरबीसी होता है नसों के अंदर, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, 7 माइक्रॉन्स। और जहाँ पर हवा होती है वहाँ पर हीमोग्लोबिन होता है। तो एक चक्के को समझिए, और जहाँ हवा होती है वहाँ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन पेरिफेरी में होता है आरबीसी के, और इस हीमोग्लोबिन में वो ताकत होती है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है। आपको ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन आपको इसलिए चाहिए कि शरीर जीवित है, जिंदा है। शरीर जो सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की, उसको कैसे कहते हैं? सेल। जैसे एक बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग की जो सबसे छोटी इकाई होती है एक ईंट,
एक ईंट, दो ईंट, एक फ्लोर, दो फ्लोर, 100 फ्लोर, तो इस तरीके से बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से जो सेल्स है, ये सेल्स ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गनों से शरीर बनता है। तो जो सबसे छोटी इकाई है वो है सेल। सेल की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेशलिटी है वो ये है कि इसमें सब कुछ है। इसमें वो ताकत है, ये हर चीज़ बना सकता है, प्रोटीन बना सकता है, मतलब जो भी शरीर को चाहिए वो उसमें सेल में शक्ति होती है। वो इसलिए होती है कि उसको उस तरीके से प्रोग्राम किया रहता है, उसके अंदर उस तरीके से जेनेटिक मटेरियल होता है जो ये चीज़ें बनाता है। तो ये आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये बाइंड करता है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको क्यों चाहिए? क्योंकि हर सेल जिंदा है। एक सेल सेल के दो एक सेल डिवाइड होता है दो में, दो चार, चार में आठ। एक छोटा बच्चा पैदा होता है और बड़ा होकर एक पूर्ण रूप से मानव रूप धारण करता है। ये इस उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए ये सारा फंक्शन जो है वो सेल का है। और सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन को पहुंचाने का जो काम करता है वो आरबीसी करता है, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। तो ये मेन फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। अब हीमोग्लोबिन मोटे तौर से हम जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है उसको हीमोग्लोबिन ए कहते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन। ये अल्फा टू बीटा टू होता है। मैं इसको ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। इसको मैं इसलिए इस वर्ड को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि दूसरा हीमोग्लोबिन है सिकल हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं आज। तो एक तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हो गया, दूसरा सिकल हीमोग्लोबिन हो गया। अब ये सिकल हीमोग्लोबिन क्या है? देखिए, सिकल सेल के पेशेंट हम आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, रोज हमारे पास आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हर चीज उस सिकल से नहीं हो रही, क्योंकि अगर उसके 365 दिन में से अगर वो 300 दिन ठीक चल रहा है या 364 दिन ठीक चल रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ एक दिन तकलीफ होती है, तो इसका ये मतलब है कि सिकल हीमोग्लोबिन में वो सारी ताकत है जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में होती है, यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने की। फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सिकल हीमोग्लोबिन को देखकर करीबन 0.5 मिलियन, यू रिमेंबर टू 2021 0.5 मिलियन चिल्ड्रन वर बोर्न विथ हीमोग्लोबिन एस। और अगर देखा जाए तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन करीबन 8 मिलियन पीपल आर हैविंग सिकल सेल ग्लोबली, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट। तो ऐसा क्या हो गया कि वो हीमोग्लोबिन ए कन्वर्ट हो गया हीमोग्लोबिन एस, एंड इट इज अ वेरी स्मॉल म्यूटेशन विच हैज अकर्ड। एक बहुत छोटा सा चीज हुआ है। क्या चीज हुआ है? ये जो सेल होता है, मैंने जिसके बारे में अभी कहा, इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम। ये क्रोमोजोम होते हैं 23 हमें अपने पापा से मिलते हैं, 23 हमको अपने मम्मी से मिलते हैं। टोटल हमारे पास 46 क्रोमोजोम्स होते हैं। सारे कैरेक्टर्स, यानी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है विच यू आर इनहेरिटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो नेचुरली जो पेरेंट्स के गुण होंगे वो सभी बच्चों में आएंगे। तो अगर गुण पेरेंट्स में कोई खराब गुण होगा वो भी आने वाला है। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के ऊपर में जीन्स होती है, और जीन्स में होता है डीएनए। ये डीएनए ये बहुत बहुत लंबा है। अगर आप चाहें तो एक सेल का डीएनए पूरे वर्ल्ड को, पूरे ग्लोबली आप उसको घुमा सकते हैं, इतना लंबा होता है। उसके अंदर उस डीएनए में एक छोटा सा डिफेक्ट, जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड चेंज, ये पूरा हीमोग्लोबिन के प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। उसको सिकल हीमोग्लोबिन रहता है। जस्ट ग्लूटामिन गेटिंग चेंज्ड ओवर टू वैलिन एट बीटा 6 पोजीशन, छठवें क्रोमोसोम पर बीटा 6 पोजीशन के ऊपर ये एक स्मॉल चेंज है, और ये सारी के सारी चेंजेस चेंज कर देता है उस हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टी को। और ये क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन तो लेके जा रहा है, मगर एक और चीज है कि जब भी शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जब भी आपके शरीर की ऑक्सीजन कम होगी, तो ये हीमोग्लोबिन जो है ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। जो हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन ए है, कितना भी ऑक्सीजन कम हो जाए ये वैसा फ्लूइड का फ्लूइड ही रहेगा। किंतु जो हीमोग्लोबिन एस है, जब ऑक्सीजन कम होगा तो ये हार्ड हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे पानी का बर्फ हो जाता है। अगर आप पानी के एक थैली के अंदर पानी रखें और फ्रिज में रखें, उसको डीप फ्रीजर में बाहर निकालें, तो आप देखिए कितना हार्ड हो जाता है। समझने की कोशिश करिए कि आरबीसी का साइज मैंने अगर कहा 7 माइक्रोन्स है, और हमारी नसें, कुछ नसें हैं जो 2-2, 3-3 माइक्रोन की होती है, उसमें से इस 7 माइक्रोन वाले आरबीसी को बहना है, तो आरबीसी कितना सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये जो सॉफ्टनेस होती है ये बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन ए है। ये सॉफ्टनेस है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन एस, सो लॉन्ग इट हैज इनफ ऑक्सीजन। जब भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, तो ये नसों में से बहेगा कैसा? तो छोटी नसें तो दूर, बड़ी नसों में भी जाके वो ब्लॉक कर देगा नसें। तो आगे जब नसों को ब्लॉक कर देगा, तो नसों के ब्लॉक होने से आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगा।
तो जब आगे ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जो सेल्स जिनको ये सप्लाई करने वाला था, ये नस जो ये ब्लड सप्लाई हो रहा था जिस एरिया को, वो सब सेल्स जो है वो मरने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट स्टार्ट्स गिविंग यू पेन। सो पेन का मेन जो इशू आता है वो इसलिए आता है कि ये हीमोग्लोबिन एस जो है ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद में क्योंकि इसके जो जो रेशे होते हैं वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रेशे होते हैं। ये आरबीसी गोल है, और आरबीसी के अंदर जो ये टेक्टोमर्स हैं ये ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस रहेंगे, तो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन को खींच लेगा, और now it will no more remain round, it will just have a sickle shape, it will go like this. So because it has long tectomers, so and they're very hard. Now this is a very hard red cell which is known as irreversible, sickled cell. Now it cannot flow into the circulation, और अगर ये फ्लो करता है तो कहीं जाके ब्लॉक कर देगा। पहले एक आरबीसी सिकल हो गया, फिर दो हो गए, फिर चार हो गए, देन मिलियंस ऑफ आरबीसीज दे विल जस्ट गेट इनटू, दे विल क्लॉग योर ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल को ब्लॉक करना ये पैथोफिजियोलॉजी है इसकी। जब भी नस ब्लॉक होगी तो सिकलिंग, यानी सिकलिंग जैसे शुरू हुई तो नस ब्लॉक होगी, यहीं से ये बीमारी का प्रादुर्भाव होता है, यहीं से बीमारी शुरू होती है, और फिर उसके जो भी डिजीज कॉम्प्लिकेशंस है दे आर ऑल रिलेटेड टू दीज थ्रोम्बोसिस। इट डिपेंड्स कहाँ करेगा क्लॉग। अगर पेरिफेरल ब्लड में करेगा तो पेरिफेरल नसों में पेन शुरू होगा, हाथ पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। अगर यही नसें आपके बोन्स में जाके नसों को ब्लॉक करेगी तो बोन पेन शुरू हो जाएंगे। यही नसें अगर आंखों के अंदर ब्लॉक करेगी तो आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये भिन्न भिन्न जगहों में नसों को ब्लॉक करता है और उसके हिसाब से प्रॉब्लम शुरू होता है। अब ये जो इसकी जो ये मैंने आपको एक सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करी कि सिकल सेल में होता क्या है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करें कि भाई ऑक्सीजन कम क्यों होता है, और ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन कम होता है और जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वो प्रिवेंट कर सकें तो हो सकता है कि हम जो डिजीज की सीवियरिटी है उसको बिल्कुल कम कर सकें। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किन चीज़ों से। तो मैं जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमारा पहला काम यही होता है कि उनका जब डिजीज डायग्नोसिस होता है तो उनको काउंसल करते हैं। काउंसल ये नहीं करते कि तुम्हारी बीमारी है, अब तुम्हें जान को खतरा है, नाउ यू विल हैव ए लाइफ ऑफ जस्ट 6 years और 10 years और 30 एज नॉर्मली पीपल विल से। नहीं, इस तरीके की हमारी काउंसलिंग नहीं होती। हमारी काउंसलिंग होती है क्योंकि ये बच्चा पैदा हुआ है और हम सिकल सेल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके ऊपर में एटलीस्ट अगर हम कुछ नहीं कर सके तो उसकी जो मॉर्बिडिटी है, जो उसके डिजीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कर सकें। तो उसके लिए उसको ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, उसको ये बताना ज़रूरी है कि तुम्हारा ऑक्सीजन क्यों कम होता है। जब आप दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, बहुत एक्सर्शन करते हैं तो रिक्वायरमेंट आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप स्कूटर चलाते हैं, जितना तेज चलाएंगे उतना आप उसको एक्सेलरेट करेंगे, उतना ही पेट्रोल खींचेगा तो स्कूटर चलेगी। ठीक वैसे ही अगर मेरा स्कूल है 5वें फ्लोर पे, मैंने ऊपर नीचे 2-4 बार 5 बार करूंगा तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, मेरे शरीर का ऑक्सीजन कम हो जाएगा। मैं तो सिकलर हूँ, मेरी तो सिकल हीमोग्लोबिन है, तो ये सिकलिंग शुरू हो जाएगी, पेन शुरू हो जाएगा, नस ब्लॉक हो जाएगी, और उसके ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक जैम होता है पूरा जैम हो जाएगा। ट्रैफिक जैम हो गया तो मूवमेंट बंद हो गई, तो जितना जो भी ऑक्सीजन उन आरबीसी के बीच में था वो ट्रैफिक जैम में वो भी निकल जाएगा। वो निकल गया तो वो भी सिकल गया। तो सारा ट्रैफिक जो है एक नस से दूसरे नस तक, जहां तक वो डिवीजन, जहां तक वो बाईपास जब तक नहीं आता वो सारा एरिया ब्लॉक हो जाता है। तो ऑक्सीजन हमारा कम नहीं होना चाहिए, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने थकना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट गेट एग्जॉस्टेड। और एग्जॉशन को रोकने के लिए आपको अपने आपके कार्य हैं, जो आपकी क्रियाएं हैं, उनको बिल्कुल कम करना है, लो लेवल पे करना है। लो लेवल पे आप दौड़ेंगे नहीं, आप ज़्यादा खेलेंगे नहीं, आप इंडोर खेलिए ना, इंडोर गेम्स करिए, आप अपने दिमाग को जितना मर्जी यूज़ कर लीजिए। फिजिकली आप अपने आप को इतना नहीं कर सकते। आप स्कूल है, आपका 5वां फ्लोर पर है, ठीक है, आप चले गए ऊपर, आप बार बार ऊपर नीचे क्यों करते हैं? मत करिए, ठीक है, ज़्यादा खेलिए। और ये हम लोगों की आदत होती है कि अगर जब हम अच्छे होते हैं ना तो हम कम्पीट करते हैं नॉर्मल लोगों के साथ में। ये सिकलर्स जो है, सिकल के बच्चे जो है, उनको जब तक ये बताया नहीं जाए कि ये तुम जो है, मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम नॉर्मल से फिजिकली, आई एम जस्ट टॉकिंग नॉट अबाउट द होलसम थिंग, बट फिजिकली आप 80% है उसके, आप उससे कम्पीट मत करो। आपको उससे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप मेंटली उससे कम्पीट कर लो, आप यू मे बी बेटर मेंटली देन दोज पीपल। आप उसमें आप अपना जो हुनर है वो मेंटल एक्सरसाइज में करिए, उसमें आप करिए, ये फिजिकल मत करिए, क्योंकि भगवान ने आपको दिया नहीं है वो ताकत, आप नहीं कर सकते, आप थक जाएंगे। तो दूसरा, बुखार अगर आता है, अगर आपको फीवर आता है, बहुत ठंड लगती है,
एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर है। तो ये इन चीज़ों से बचना है। अगर बुखार आ गया तो उसका इमीडिएटली इलाज होना चाहिए। अब बुखार क्यों आया ये भी ज़रूरी है। क्राउडेड प्लेस में जा रहे हैं आप, बाहर का खा रहे हैं, कुछ भी कहीं पर भी रास्ते पर जो खाना मिल रहा है वो खा रहे हैं, लूज मोशंस हो गए, डायरिया हो गया, तो ये सब प्रेसिपिटेट करते हैं ऑक्सीजन को कम करने के लिए। और जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा तो आपकी सिकलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फीवर आ गया तो ऑक्सीजन कम हो गया तो सिगलिंग शुरू हो गई। अब फीवर का भी इलाज इमीडिएटली होना चाहिए। हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा यही बोलते हैं कि हम उनको लिख कर देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि पेशेंट्स इतने दूर से आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स गढ़चिरौली का है, बस तो वहां तक पहुंच गई, जहां उसका गाँव है वहां से और उसको 3 घंटा पैदल चलना है, हो सकता है राइट। उसको वहां सिकलिंग का अटैक आएगा, वो कैसे पहुंचेगा हॉस्पिटल तक? हम्म। तो हम उन्हें पहले ही बता देते हैं, उनको पहले तो ये काउंसलिंग करते हैं कि आपको एग्जर्शन नहीं, अगर सपोज होता भी है, फीवर आता है, तो फीवर के लिए हम कुछ गोलियां स्पेशली जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वगैरह रहते हैं जो हम उनको लिख कर देते हैं, क्योंकि उसकी जान जो है अगर हम ओवर ट्रीट भी करते हैं, आई फील इट्स मच बेटर देन अंडर ट्रीटिंग दीज पेशेंट्स एंड हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एक व्यक्ति को अपने घर से अपने गांव से यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। अगर आप एक बार भी, मैं तो रियलाइज करता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ कि किसी को गांव से आना है तो हो सकता है उसको पूरे घर तक, गांव तक बस मिले भी नहीं, रास्ते में भी उसको रुकना पड़े, रात को कहीं रुकना भी पड़े। तो ऐसी स्थिति में उसको हमें पूरी तरीके से उसको जो जो दवाइयाँ उसके पास हम उसके बैग में हमेशा होनी चाहिए, वो एक लिस्ट दे देनी चाहिए किस समय तुमने क्या करना है, और उसको बराबर तरीके से समझा दिया जाए। तो हमारे यहाँ आजकल पेशेंट्स को का आना, एडमिशंस बिल्कुल कम हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ this counseling. So counseling part is a great part. They should be aware of sickle cell disease. They should be aware why sickling occurs, and they should always, but they should also know how to prevent. सो सर, ये जो आपने बताया, तो एट व्हाट पॉइंट कैन समवन गो इन फॉर अ डायग्नोसिस? क्या सिम्टम्स हैं जिससे कि कोई ये माने कि ही मे बी हैविंग द सिकल सेल प्रॉब्लम? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है एक्चुअली। स्पेशली देखिए, अगर आप देखें तो ये कुछ एथनिसिटी में ज़्यादा कॉमन है, वेरी कॉमन। कुछ एथनिसिटी विच एवरीबडी नोज अबाउट इट, स्पेशली हमारे जो गांव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें बहुत ही कॉमन है। तो बच्चा है 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का, बार बार बुखार आ रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उसका हीमोग्लोबिन घट जाता है, एकदम सडनली ही बिकम्स पेल। तो दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स जो रिकॉग्नाइज करने चाहिए डॉक्टर ने, और डॉक्टर ने नहीं, एटलीस्ट घर के जो उनके माँ बाप है उन्होंने रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि अगर उसका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम होना और पेन होना, ये दो चीज़ें अगर साथ में चल रही है तो सिकल सेल इज हाई ऑन द कार्ड्स। सो देयरफॉर उन लोगों को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाकर अपना निदान डायग्नोसिस करवाना चाहिए। तो सर, आपने बोला कि हीमोग्लोबिन चेक करना चाहिए, बट फॉर अ ले पर्सन वो किस तरीके से अंदाजा लगा सकता है कि हीमोग्लोबिन कम मालूम हो? पड़ जाता है एक्चुअली, क्या है, वो पेल हो जाता है, तो सफ़ेद पड़ जाता है एकदम। वो बच्चा ठीक था, लाल था, एकदम पेल हो गया, सफ़ेद हो गया, वो लिस्टलेस हो गया, काम नहीं कर नहीं पा रहा है, नींद आ रही है, सो रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू। तो ये सब माँ बाप को नहीं समझ में आया, तो मगर किसी न किसी को समझ में आ जाता है, तो वो देख कर तो इतना तो समझना पड़ेगा। और नहीं समझ पाया इसलिए डिले होता है, मैनेजमेंट में भी डिले होता है, ट्रीटमेंट में भी डिले होता है, डायग्नोसिस में। जो माँ बाप मतलब इजीली समझ पाते हैं वो उसका जल्दी डायग्नोसिस करवा के उसका ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज, डज इट रन इन फैमिलीज? कैसे, हाउ डज दिस डिजीज हैपन एक्चुअली? या it's a basically it's a disease recessive disorder basically, in the sense हमको अगर डिजीज प्रेजेंट करना है, डिजीज को मैनिफेस्ट करना है, तो हमारे पास है माँ और बाप दोनों से वो जीन्स आनी चाहिए। तो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स व्हेन दे कम देन दे विल मैनिफेस्ट। सपोज एक का आया दूसरा नहीं आया, नॉर्मल आया, तो दे डोंट मैनिफेस्ट, दे जस्ट कैरी। सो दे विल कैरी द डिजीज because they have one gene. And the children, if they are born to two carriers, 25% चांस है वहाँ पे भी। नॉट ऑल, यानी दो कैरियर्स ने शादी की तो सभी बच्चे आपके सिकल सेल होंगे, ऐसा नहीं है। 50% would be sickle cell trait carrier like the parents, 25% will be having double S means disease, and 25% will have no problems. So you can expect 25% patients to be a patient in every delivery. नॉट दैट कि मेरा एक बच्चा नॉर्मल निकला तो अब खराब निकलेगा, या अभी खराब निकला तो नेक्स्ट अच्छा निकलेगा, नहीं। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल प्रेगनेंसीज, फॉर एवरी प्रेगनेंसी।
तो ये समझ में आना चाहिए कि दो वाहक, दो कैरियर्स, इफ दे आर मैरिंग, then they can have a sickle cell disease child. So if they know that both are carriers, how to prevent that? That would be your question. That should be your question. तो Yes. उसके लिए तो पॉपुलेशन में देखिए, पॉपुलेशन में आजकल वही हो रहा है कि आजकल, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस प्रोग्राम एंड नाउ, सो आप लोग जिस तरीके से अवेयरनेस कर रहे हैं, उस अवेयरनेस से लोगों के घरों में चला गया, और अब नाउ इट इज नॉट नाउ ए टैबू. Now people realize it that it is better, sooner the better, to make use of the diagnostic procedures, especially in that ethnicity. तो वहाँ पे वो लोग आजकल सभी लोग करते हैं शादी के पहले, अगर सिकल सेल ट्रेट है, अगर बोथ पार्टनर्स आर सिकल सेल ट्रेट, then you can marry. There is no nothing to worry about, because you can still make a diagnosis of a child in the womb at 12th week of the pregnancy. So एक possibility, अगर suppose unavoidable है शादी, क्योंकि होता है बहुत, इट्स अनअवॉइडेबल, या किसी ने शादी कर ली और बाद में मालूम पड़ा कि दोनों को ट्रेट है एंड दे हैव ए चांस टू हैव ए सिकल सेल डिजीज, नथिंग टू वरी अबाउट. 12th week, 10th to 12th week, they should visit a doctor. We can do the prenatal diagnosis. We can take the chorion villus sample. We take sample of the fetus at the 10th to 12th week. अल्ट्रासाउंड गाइडेड रहता है, सैंपल निकाल के उसका डीएनए एनालिसिस होता है, एंड वी सी फॉर बीटा 6 पोजीशन पर, जो मैंने आपसे बताया ग्लूटामिन टू वैलिन जो चेंज हुआ है, दैट सीन, इफ दैट इज प्रेजेंट इन बोथ the chromosomes, then it's a disease. If only one, then it means it's a carrier. नहीं है तो फिर नॉर्मल है, तो वो पहचाना जा सकता है. तो नथिंग टू वरी इन केस दे आर मैरिड. If they can avoid marriage, then it's fine. If they cannot avoid marriage, they can still go, and the prenatal diagnosis, that facility is existent, and that should be taken use of. Are there some kind of precautions that a pregnant mother should take? If the precautions have to be taken by a pregnant woman who is double S. I mean, who is having a disease, who has both the genes, double S. She requires prevention. Baki rest of the, you cannot prevent. How can you cannot prevent the birth of a sickle cell disease except by prenatal diagnosis. There are no other medicines that you will avoid a sickle cell disease, baby to be born in you, except for the diagnostic part. If it's a double S, then you can have MTPs. And if it is sickle cell trait, you can carry on the pregnancy, or it's normal, you can carry on the pregnancy. So all those things are available, but there is no way you can avoid. Are there any treatments that are being worked upon, like in the near future, because something to do with the bone marrow stem cell? Yes. Can you talk to So us a little about that? Yes, very simple. It's a genetic disorder. So you have got a software from your parents, which will produce only sickle hemoglobin. It's going to produce only sickle. So if that software is there, you cannot change. So you have to change the software. So if you want to change that software, you have to delete first your software and get the new one. And the new one, and this process is called as bone marrow transplant. So what you're doing is you are getting a new stem cell, a stem cell which does not have sickle hemoglobin. Now who is going to give you this? So who is going to be your donor? Because your body is not going to accept anything unless it matches your body. So you have to do the tissue typing, or in simple word, if I have to use words, I use a password. So you have to get the password of these two people to the patient. Now the password has, there are 12 sites. So you can have ABC, HLA A, B, C, D, D, R, D, Q. So these are the positions which you have to look in for, and this you are inheriting. That's there in your chromosomes. That's there in your DNA. So those tests are to be done. Now, if this HLA is being given by your both parents, half from your one parent, half from the other parent. So you have one set of HLA, one set of password. Now, you cannot expect this password to be in any other person except your sibling. Absolutely, yes. You can have a chance in the sibling, not necessarily that your even sibling is going to have it. But there is a chance, because there is one set of HLA coming from one parent, the other set of HLA coming from the other. And for example, baby A gets, you have two sets, AB is father, CD is mother.
Now AB comes from one father and CD comes from the other. So now this fellow is AB and CD. The other fellow has to have the same thing. Hmm. Not necessarily he's going to. He can have, B, C and D, C D. Sorry, B and D. Now, if he has BD, this is AC. It's not matching. So you have to match it. The body is very, very, it's fascinating. It's amazing. Your body cannot accept anything because body recognizes self. Hmm. It knows that it is not me. Yes. Once it knows it is not me, it's going to reject. Yes. So only you can fool when the HLA is same. If the HLA is same, then body thinks that yeah, it's mine, so it accepts. So for a bone marrow transplant, the most important thing is that you have to have a tissue matching, and the matching comes usually from the siblings. So this is called as the sibling match, full match. So you need to have a full sibling match. This is the best transplant material, and it can give you results more than 90%. So if that's so, that would be one of the options for patients of sickle cell disease who have problems. Problems means recurrent transfusions, recurrent pains, cannot go to the schools, and their daily routine is going, hayway. So these are the children, they need to be transplanted. You may have more than 70% patients of sickle cell disease who don't require transplant. Just by simple manures, they do very well. So for those patients, 10% patients who require transplant, you need to have a proper donor. You have registries now. If you don't have your sibling, you're not available, then one can try in registries. So in registries, there are population is given their bloods and they do the HLA typing, and now the registries are available. You have an international registry, you have local registry. International registry, way you can have a donor saying in Switzerland. So you can get those things. So those things are available now. The transplants are possible, and now, if you don't have a sibling, then haplo transplants are possible. You have one HLA match, the other one is not matching. So by doing some maneuvering in the stem cells, or after giving the transplant, you can give certain drugs which can suppress the immune system so that there's no rejection. So those things are shaping, and those will be now with that you can increase the donor pool, and you can have for every child you can have a donor because parents are always there. So you can do that. So those are the advancements nowadays. The haplo transplants are available, and they can be done. But the best results are full matched sibling transplant. This is such precious information for those who need this. So before we conclude Ek Samvad with you, sir, please give us a summary for the parents and for the caregivers about how they should deal with a person who's got this sickle cell problem. For the parents and the caregivers, and for those people who really want to work for sickle cell disease patients, they should know one thing: don't get worried. Mm. We have to manage these patients, and manage, if you manage them optimally, they will do very well. So optimum management has to be there, and that comes through knowledge. So you have to go to a proper person who understands sickle cell disease, Mm. who motivates these sicklers Mm. to do the best optimum. They have to manage their own body, their own self. Most of it comes from their own self, not the drugs, not the medicines. So therefore the counseling part has to be perfect. They should know that out of 365 days, if your 364 days are fine and just one day is having problems, then you better change that one day. What has happened that day, you must know what has been done that day. You have to avoid that. And I'm sure that day was with fever, was a lot of exertion, all these things. This happens in 80-90% patients, so those can be avoided. So if you can do that, then I'm sure you may not require much of the hospital attention, the doctor attention. So the treatment is with you. So you can manage, you have to manage yourself. And those patients who have more problems, difficult situation,
lot of pains and lot of all these problems, then they should visit doctors, be in the under their care, and go regularly. I'm sure they will be able to take care of you by different treatments which are available. The best, I just forgot to tell one of the drugs which is very important, and that I will communicate to you through you to all my listeners here, is the hydroxyurea. That's the only drug 1998 onwards which has done a great work. And our most of our patients, I mean almost 100% my patients, they are taking hydroxyurea. They don't require to come to doctors quite often. Once in a while they have to come. We make them again, we set them again back. We set their problems and send them back. And therefore, if you have to live long, if you have to live this precious life in a better way, be hear what I'm saying. Don't get worried from sickle cell disease. There's always a method. There's always a better life after listening, after understanding your doctor's view. So remember that you can fight your disease, and you are the only person who is going to fight. We'll just help you. We'll just take you along with us, and we'll fight the disease together. But the first thing is that you have to take the first step. We are going to take the second step. I'm sure things are going to be great. Newer treatments are available, new drugs are coming, transplants are there. For those patients who require that, they will always get that, and we'll see that we will have a great future for our sicklers in coming times. Thank you. I think this is brilliant, sir. You have given so much power to your patients, so empowering the patients with awareness and hope. What can be better than that? I'm so grateful to you for your time, sir, and thank you so much for sharing so much valuable information. It was such a pleasure talking to you on Ek Samvad. Thank you for being here. Thank you, sir. Thank you. Thank you, madam. Thank you.